Hello to all of you who are joining us today for NIJ podcast with Ananya. Today I am talking to a firebrand politician जो कि almost talk of the town है because she's had the courage, she's mustered the courage to really speak against harassment and abuse in political party culture. She is none other than Miss Radhika Khera. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you for joining us for this podcast. I've been waiting to get time on your schedule for this podcast. Been a tough week. Huh? How's this week been like? Scary. Scary. Okay. 22 years I've been with the party. Hmm. Taking such a big decision has not been easy. And scarier than that was the fact of what happened with me. Yeah. So that entire thing from the 30th till today, I haven't slept for I think more than 2 or 3 hours in the night. वो भी अब, ever since I joined the BJP, that sleep has increased by an hour. Otherwise 10 तारीख के बाद से 30th के बाद से तो I hardly slept for 1 hour. And पहले घबराहट से नींद नहीं आ रही थी, अब एक अलग I don't have words, to explain the entire feeling because ऊपर नीचे it's been a roller coaster. And I think वो जो होते थे ना कि highest and fastest roller coaster, वो वाली ride है, suddenly एकदम नीचे, suddenly एकदम ऊपर, and things emotionally, mentally have been very very tough. तो आप एक बात बताओ, आप I was reading about you, आपने politics at the age of 17 join की. मतलब I have not come across someone जिसने इतनी young age में join की. So what made you join politics? That See, I was 17 जब मैंने college join किया, तो I studied in Delhi College of Arts and Commerce. So no political दिमाग में भी thought नहीं था. So when I was in college, although my college was not affiliated to DUSU, still NSUI and all people used to come, and that's when I got in touch with them. When I took part in student politics in my college, I was an elected girls representative in my college. Then I contested for general secretary and president. So tabhi at 17 I was one of the first women to get elected in my college, I think, in lots of years. And then NSUI people I met, and then the first time I think I was 17 and a half or almost 18 when I first went to AICC, that was 24 Akbar Road. तो आप कितने साल रही कांग्रेस में, like you? I was 17, I'm 40 now. Okay. So 22 years. 22 years. So you have, हम आपको insider कह सकते हैं, right? And a loyalist. I mean, ex-loyalist. As an NSUI booth worker. That was one of my first posts. I probably even have the letter on my phone. I was an NSUI booth general secretary. So that is, it can't get lower than that. And now I'm an I resigned as an AICC office bearer. See, abhi bhi wo nikal aata hai, now I am. Kyunki it's been such a long journey, and I've been associated with a particular ideology, a particular party. And then it has been a complete, it's like a different world. नया जन्म जिसे कहते हैं. अच्छा. For me. To switch and from and from one universe to another universe. Yeah. Not just यही ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल absolute different universe है. नहीं तो ये बताइए कि 22 years आप कांग्रेस में थे, आप मीडिया कोऑर्डिनेटर भी थे वहाँ पर. हाँ, so I started as NSUI, then I went on to become general secretary in district in Youth Congress, then vice president district Youth Congress. Then I was in the first election that took place in Delhi for Youth Congress. Then I was made state main Congress, the Delhi State Congress, the senior Congress ki social media chairperson when Arvinder Singh Lavli ji was president. Okay. See, जो उस वक्त थे वो दोनों इधर है. What coincidences. And then I went on to join the social media team. I was a part of the With Congress. That time Dipinder Hooda ji used to be heading social media. So I was a part of the volunteer management. Okay. Then I went into Youth Congress again. I was a national secretary of the Youth Congress in charge of Gujarat. That was my territorial responsibility. I worked in Gujarat when Modi ji was chief minister and as an in charge, and I've traveled the length and breadth of the state. Then I went on, and then I was also heading the social media for the Youth Congress for a year and a half. And that was my functional responsibility. Then I came into AICC. Randeep Surjewala ji got me here as a national media coordinator. And
7 or 8 years now I've been on the same. तो चलिए मीडिया की बात करते हैं. आपने आई हैड अ डिफरेंट क्वेश्चन इन माय माइंड, आई विल कम टू दैट लेटर. लेकिन मतलब सीरियसली मुझे भी अब समझ में आ रहा है कि आप कितने डीपली यू वर लीडिंग एंड यू वर इन चार्ज ऑफ द क्या कि मैं कहाँ कौन से पोस्ट, इट वाज लाइक अ फ्लैशबैक reliving through that. सोशल मीडिया कोऑर्डिनेशन. सो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे व्हेन यू टॉक ऑफ कांग्रेस और उनका जो पूरा मीडिया फुटप्रिंट है, there are a lot of these social media influencers, right? And I won't take names. English speaking, Hindi speaking, बहुत सारे social Living media. in Germany. हाँ. Okay. So there are so many social media influencers. And काफ़ी सारे अपने आप को independent experts भी कहते हैं. And आप वॉल स्ट्रीट उठा लो, न्यूयॉर्क टाइम्स उठा लो, कुछ भी उठा लो, एंड देन यू नो उनके कुछ लेख निकलते हैं एंड नीचे लिखा होता है इंडिपेंडेंट ओपिनियन यू नो राइटर फ्रॉम इंडिया और समथिंग लाइक दैट. एंड सो विदाउट टेकिंग नेम्स, एंड ऑफ कोर्स दे वेरी मच सपोर्ट जो कांग्रेस के नैरेटिव्स होते हैं. हम नैरेटिव से बाद में आएंगे. पहले तो मुझे टेक्निकली ये बताइए कि मैं हमेशा ये सोचती थी कि ये इतने सारे जो सो कॉल्ड आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं, जिन यूट्यूब ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, इनको क्या, एंड यू वर द मीडिया कोऑर्डिनेटर, क्या कांग्रेस पार्टी फीड भेजती थी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को? क्योंकि मैसेजिंग इतनी अलाइंड होती थी कि एक ने कुछ डाला वही चीज़ 4 लोग और डाल रहे हैं, और वही कांग्रेस की पार्टी लाइन भी है. देखो सोशल मीडिया कैसे काम कर रही थी वो मैं इंटरनली नहीं जानती, बिकॉज आई वाज इन मीडिया एंड सोशल मीडिया वाज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट. लेकिन ये सवाल मेरे अंदर भी आता था, स्पेशली ड्यूरिंग दिस इलेक्शन, कि एक आदमी जर्मनी में बैठ के वीडियो बना रहा है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के लोग उसको अपनी रैलीज में प्ले कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से उसका वीडियो प्ले कर रही है. क्यों? क्या कांग्रेस को अपने मैनिफेस्टो पे विश्वास नहीं है? क्या कांग्रेस को राहुल गांधी जी पे विश्वास नहीं है या प्रियंका गांधी जी पे? डिलीवर द मैसेज. हाँ, मतलब क्या वो जर्मनी से बैठा हुआ आदमी जो एक वीडियो भेज रहा है उसकी बात की वैल्यू राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और आपके मैनिफेस्टो से ज्यादा है जो आपको आज उन तक जाना पड़ रहा है? आप ये यू डोंट सी दैट हैपनिंग इन द बीजेपी. द पीपल ऑफ द कंट्री are believing what Modi ji is saying. So when you put someone like that so-called person or any other person for that narrative creating or whatever, whether you are giving them the narrative or they are giving you the narrative, that is a separate question. But if you have to rely on them to give your message to the people, then I think इससे अच्छा तो खड़गे जी को रिजाइन करके उसी आदमी को अध्यक्ष बना देना चाहिए. क्योंकि आप उस इंसान को वो दे रहे हो कि वही उसका वीडियो हर जगह चलेगा, सोशल मीडिया पे, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म्स पे, नेशनल प्लेटफॉर्म पे. इसका मतलब आपके पास कोई ऐसा नेता ही नहीं है लोग ट्रस्ट करते हैं, बात विश्वास कर रहे हैं. अगर उस आदमी की बात पे विश्वास करे तो बनाओ उसको कांग्रेस का अध्यक्ष और अब से हटो. सिंपल बात है. दिस इज व्हाई आई वाज ऑलवेज अगेंस्ट इट कि व्हाई आर वी रिलाइंग ऑन समवन. ठीक है, आप उसको, आपका इकोसिस्टम उसको फॉरवर्ड करे, शेयर करे, बट गिविंग योर पार्टीज प्लेटफॉर्म, गिविंग योर पार्टी का जो आप स्क्रीन्स लगा रहे हो कि उस पे वही चला रहे हो. हाँ. तो दैट जस्ट शोज कि यू योरसेल्फ आर एक्सेप्टिंग कि जनता आपकी बात पे विश्वास नहीं कर रही. राइट. ये तो हो गया सपोज पार्टी का ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को लिटरली यूटिलाइज करना अपनी बात कहने के लिए. तो फिर अच्छा, ये पार्टी की बात है कि नहीं? अब अभी तो आप वो इन्फ्लुएंसर की बात पार्टी कर रही है. हाँ. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इन्फ्लुएंसर है जिसके हिसाब से पार्टी चल रही है, इंस्टेड ऑफ द पार्टी गोइंग ऑन. बिकॉज यू आर, अपनी बात तो आप बोल नहीं रहे. हाँ. आपको अपना मैनिफेस्टो के लिए ठीक है, सी यू हायर एक्टर्स, यू हायर इन्फ्लुएंसर्स, वो आपका नैरेटिव एज इट इज, आपका मैनिफेस्टो को एम्पलीफाई करेंगे. पर यहाँ तो आप उन ब्लॉगर्स को एम्पलीफाई कर रहे हो ना. यू डोंट हैव अ फेस. दैट मींस यू हैव अग्रीड दैट द कंट्री इज नॉट रेडी टू ट्रस्ट यू. राइट. एंड एज यू सेड, कैन दैट ऑल्सो लीड टू अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट कि जहाँ पर यही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, अगर उन्हीं की बातें कांग्रेस प्लेटफॉर्म से चल रही हैं, तो कहीं ये सोशल मीडिया तो छोड़ो, आपको लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी भी ऐसी इन्फ्लुएंस करते होंगे? मुझे तो लग रहा है आजकल वही कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी जो है उस पर तो चल नहीं रही. अब कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आज तक के जो रहे हैं वो महात्मा गांधी जी हैं. अब महात्मा गांधी जी की हर सुबह की शुरुआत, हर दिन का जो एंडिंग होती थी, यार कांग्रेस की हर सभा की शुरुआत उस समय पे होती थी रघुपति राघव राजा राम से. और आज उसी राम जी से कांग्रेस को बैर है.
आज उसी राम जी के खिलाफ लंबी लंबी चिट्ठियां लिखी जाती है। आज उसी राम जी का मंदिर जिसके लिए पीढ़ियां इंतजार कर रही थी पूरे विश्व में, देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में, उसी मंदिर के मूर्ति स्थापना को आपने बॉयकॉट कर दिया। नहीं तो एक बात बताइए, जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की पूरी डेट अनाउंस हो गई, इस समय इनविटेशंस भी जा रहे थे, आप तब कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे, मीडिया में भी जा रहे थे, We didn't join any debates. Anything that comes on Ram Mandir, we will not दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क, अंदर से क्या ब्रीफिंग थी कि राम मंदिर का टॉपिक आए तो एज अ कांग्रेस पर्सन आपको क्या मतलब आपको ये बोलना है कि हम मंदिर अपने आप पे जाएंगे, आप कौन होते हैं हमें न्योता देने वाले, और ये भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है, मोदी जी का इवेंट है। अरे जिन्होंने मंदिर बनाया है वही तो इवेंट करेंगे, सरकार किसकी है? कोर्ट की रूलिंग आई, ठीक है, आई अग्री विद दिस कि कोर्ट की रूलिंग आई तो वो मंदिर बना, लेकिन इतने सालों से लीगल लड़ाई तो आपकी सरकार में भी हो रही थी। आपने क्या किया उस मंदिर के निर्माण के लिए? जिन्होंने किया है, एंड मैं तो एक सिंपल बात जानती हूँ, देखो जो आम जनता भी मानती है कि राम जी चाहते थे कि उनका मंदिर नरेंद्र मोदी जी के हाथों बने, इसलिए उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे धर्म में तो यही है ना, बुलावा भी मंदिर पे आएगा तभी आप जाएंगे। क्यों नहीं आया राहुल जी और सोनिया जी, क्यों नहीं जा पाए? इसीलिए नहीं क्योंकि राम जी स्वयं नहीं चाहते थे कि वो आए, बुलावा नहीं आया ना। अब आप वैष्णो देवी जाएंगे या किसी मंदिर जाएंगे तो यही कहा जाता ना कि अरे यार बुला लिया है, जब तक बुलाएंगे तभी जाएंगे। तभी आप कोई तिरुपति नहीं जा पाता, पूरी लाइफ हो जाती है, यही होता ना कि यार बुलाया ही नहीं बुलाया ना, क्योंकि वो देखता है किस तरीके से कांग्रेस डेस्टिनी में किस तरीके से विरोध करते आए हो। नहीं तो आपको पहले तो ये इंटरनल पार्टी लाइन थी कि राम मंदिर पे कुछ भी बोलना, मतलब पहले तो जाते ही नहीं थे राम मंदिर के ऊपर, हिंदू धर्म को डिफेंड करने के लिए। नहीं तो क्या कोई इंटरनल, जैसे आप लोग मीडिया में ब्रीफिंग होती है राइट, राम मंदिर तो आपने क्लैरिफाई कर दिया कि बोलना था कि भाई ये तो बीजेपी का प्रोग्राम है एंड इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू, सनातन की भी पूरी डिबेट चली लास्ट ईयर, सनातन को गालियां पड़ रही थी एंड सब लोग कांग्रेस से जो है, आई एम श्योर आपसे भी उस समय सवाल पूछे गए होंगे कि डू यू सपोर्ट सच एन, नॉट अलाउड टू रिप्लाई ना, नॉट अलाउड। आप देखो कांग्रेस इज एंटी सनातन, एंटी हिंदू, एंटी राम जी, एंड दैट इज वेरी क्लियर। कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी। वो लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते आए हैं। उनके जो शहजादे हैं, आई से दैट ही इज द न्यू शहजादा ऑफ द टाउन। अच्छा, हु इज दैट? प्रियांक खड़गे, who is a minister in the Karnataka government. He was also heading the media. When you talk about, see, हमारा एक अधिवेशन हुआ था पूरा कांग्रेस का it was in somewhere in राजस्थान में, उदयपुर। वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया था, 1 man 1 post. खड़गे जी is the Congress president. He is also the leader of opposition, right? His son is a minister. Yeah. His son was also heading the media and social media. He had multiple roles, and his son is the one who went and said everywhere on record, बोला है कि हिंदुइज्म बीमारी है, हिंदू धर्म खत्म होना चाहिए, सनातन खत्म होना चाहिए। तो आप देखिए उसका खंडन नहीं हुआ, nobody ever spoke about it, and if we would raise it, obviously we would be shown the door. I had tweeted once or twice and I was asked to delete the tweet. अच्छा, क्या And ट्वीट किया था आपने? यही कि that the party, this is wrong. And then everyone said कि अरे delete कर दो, वो मालिक हैं पार्टी के अपने। And you know, द वर्स्ट पार्ट वॉज ये कंटिन्यूसली होता जा रहा है। आप डीएम के, ठीक है आप डीएम के आपका अलाय है, आप ये बोल देते हो कि वही उनकी लाइन है। अरे कैसे उनकी लाइन है? आप उनके साथ अलायंस में हो, आप उनके साथ सरकार में हो, वो इंडी गठबंधन नहीं, आप पहले से उनके साथ गठबंधन में हो। सपा के साथ भी ये हुआ, वो लगातार बोल रहे थे। वो ट्वीट्स मैंने डिलीट नहीं करी, वो अभी भी मेरे टाइमलाइन पे होगी। व्हेन आई स्पोक अबाउट द पर्सन फ्रॉम समाजवादी पार्टी एंड डीएमके हु वर कंसिस्टेंटली डिमीनिंग हिंदुइज्म एंड सनातन धर्म। और ये मैं हमेशा इस बात के लिए कहती थी, हम क्यों नहीं कंडेम कर रहे? दैट इज समथिंग वी शुड कम आउट एंड अग्रेसिवली स्पीक, एंड मल्लिकार्जुन खड़गे जी शुड आस्क हिज सन टू स्टेप डाउन। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्युलरिज्म एंड यू टॉक अबाउट ओनिंग एंड यू से दैट बी आर अम्बेडकर जी हमारे नेता है, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड है ना। एंड सेक्युलर का क्या मतलब होता है? हर धर्म बराबर होते हैं, एक धर्म ऊपर एक धर्म नीचे नहीं होता। बट जब आप ऐसा कहते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, कांग्रेस प्रेसिडेंट का बेटा ये कहता है, एक मंत्री ये कहता है, एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट भी लगातार कहता है। नहीं तो एक बात बताइए, विल कम टू दैट डेज इंसिडेंट। वन क्वेश्चन बिफोर वी गो देयर, व्हाई इज कांग्रेस सो एंटी सनातन एंड एंटी? इज इट ओनली बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स की कुछ अंदर से ही कुछ लाइक आई सेड कि कांग्रेस जो ओरिजिनल कांग्रेस है, जो गांधी जी की कांग्रेस थी, अब तो ये गांधी जी की कांग्रेस है नहीं, वैसे भी टेक्निकली भी नहीं है, क्योंकि इंदिरा जी ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, कांग्रेस आई बनी थी। तो ये वो पुरानी वाली कांग्रेस नहीं है जिसको
गांधी जी ने कहा था कि खत्म कर देना चाहिए, इसको भी मुझे डिफेंड करने में बहुत समझ नहीं आता था। मैं बोलती थी कि आप इसको डिफेंड कैसे करोगे, तब भी हमें भेज दिया जाता था नोट की ऐसे ऐसे बोलो, ठीक है। आई वाज डूइंग माय जॉब लाइक यू वुड, इफ यू आर विद अ सर्टेन मीडिया हाउस, यू वुड हैव टू फॉलो द लाइन, यू हैव टू फॉलो योर एडिटोरियल लाइन। सो आई फॉलोड माय पार्टी लाइन, लेकिन मुझे फिर भी वो जस्टिफाई करने में मुश्किल होती थी। अब एंड यू हैव टू बिलीव इन समथिंग टू बी एबल टू जस्टिफाई कन्विक्शन लाने के लिए। हाँ, तो ठीक है, अब जो पार्टी ने कहा हमने किया। लेकिन वो वाली कांग्रेस और आज की कांग्रेस में अंतर है। जैसे मैंने कहा, रघुपति राघव राजाराम से शुरुआत होती थी। अब एक तरफ जो फैक्ट है नेहरू जी का राम मंदिर को लेके, राजीव गांधी जी का राम मंदिर को लेके, कांग्रेस पार्टी उससे बोलने से शाय अवे करती थी। जबकि हमें सबसे ज्यादा रिसर्च और टॉकिंग पॉइंट्स अगर मिलने चाहिए थे, पार्टी का स्टैंड अगर अग्रेसिवली मिलना चाहिए था, वो ये मिलना चाहिए था। आप कहते हैं कि दे आर ओनिंग राम मंदिर, तो आप उनको ओन करने दे रहे हो ना। आप अपने बारे में नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर जाति विशेष या समुदाय विशेष या धर्म विशेष को अपने साथ करना है। अपीजमेंट ऑफ द वोट बैंक, ऑफ द वोट बैंक। मतलब क्यों किसी भी धर्म को नीचा दिखाना है या ऊंचा दिखाना है? आप सबको बराबर लेकर चलो ना। आपको कास्ट पॉलिटिक्स एंड रिलीजन पॉलिटिक्स क्यों करनी है? यू शुड डू प्रॉपर पॉलिटिक्स विच इज रिलेटेड टू the people as a whole. Whether I am a Brahmin, whether I am a Dalit, whether I am a Sikh or a Hindu or a Christian, the government is supposed to work for me equally, and I am also breathing the same air, eating the same food. So development has to be equal. But if you already, when you're asking for votes, dividing the people, why are you insistent? आप जनगणना पे इंसिस्ट नहीं कर रहे, आप जाति जनगणना, रिलीजियस जनगणना पे इंसिस्ट कर रहे हो। और ये सब एज अ स्पोक्सपर्सन आपको ब्रीफिंग्स आती होंगी टू एम्प्लीफाई द डिविजन्स। जनगणना एंड यू नो कंटिन्यूअसली जब कांग्रेस ने जातिगत जनगणना पे, रिलीजियस जनगणना पे बात करी, तो आप देखिए ना 3 चुनाव में क्या नतीजा हुआ। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। People are not buying that. People don't want it. Yeah. People don't want you to divide them on religion and caste system. We are coming out of that. When you're truly secular, then you cannot do that. आप करो जनगणना, आप उस पे कायम रहते तो शायद अलग बात होती. And you have been given an answer in the Vidhan Sabha elections for that. Right. When you spoke about it. But yet you continue picking up the same narrative. Why? Because आज देखो उनके today when I was coming here, the morning, the first video that I saw was of a candidate, I believe from Madhya Pradesh or somewhere, I'm forgetting his name. He went on record to say कि हर महिला को 1 लाख रुपए मिलेगा और जिनके घर में 2 बीवियां हैं उनको 2 लाख मिलेगा। तो आप ये बोल रहे हो ना कि एक जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसका मंगलसूत्र छीन के किसी को दिया जाएगा, वो आपके मैनिफेस्टो में ही है ना कि एक समुदाय के पैसा दूसरे को दिया जाएगा कि 2 लाख। आप एडवोकेट कर रहे हो वही चीजें, विच इज वाई अगेन लाइक द बीजेपी हैज कंसिस्टेंटली सेड दैट यूसीसी की बहुत जरूरी क्यों है देश में। राइट, इट शुड बी अ कॉमन civil law should for be it there to be truly secular. Yeah. Right. So we'll come to what happened in Chhattisgarh. लेकिन आपने काफी बार ये भी बोला कि what happened with you in Chhattisgarh or your call for justice was not answered because you had gone to the Ram Mandir. Because I am against the party line on issues and I have a voice. Because I have voiced my opinion many times. I have voiced my opinion against Chidambaram ji during Corona, and that time also I was asked to shut up. I was asked to delete the tweet. And when I was in favor of during Corona, when trains and all were not being open for, it was the first 2-3 months. तब तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है during the lockdown, when I was not in favor of trains being opened for normal public एकदम से, and I had quoted him and I had tweeted. I was asked to take that down and I was reprimanded for that. So I have always raised my voice, and I have raised my voice when people have left the party. So you know, they have continuously been upset with me because I had a voice. So I had my own opinion. Backdrop was already there. Yeah. Before the backlash over going to Ram Mandir happened. जब मूर्ति की स्थापना हुई तो मेरे घर में सुंदरकांड का पाठ रखवाया गया, सब आसपास आए, मेरे घर में जय श्री राम के झंडे बाहर लगे हुए थे, आज भी लगे हुए और तब से लगे हुए। सो यू कैन नॉट से कि मैं कांग्रेस में आके जब कांग्रेस में थी तब भी लगे हुए थे, एंड मैंने उसको बहुत सोशल मीडिया पे चलाया, एंड आई वाज टोल्ड टू why are you putting all this on social media, take it off. Who used to say that? That was told by our department. Okay.
अब दे सेड दैट ऊपर से कहा गया ना, ऊपर कौन है? ऊपर तो देखो जयराम रमेश जी हैं, उनके ऊपर राहुल जी प्रियंका जी है, तो जिसने भी ऊपर से कहा तो एंड आई थॉट कि यार मजाक कर रहे होंगे ऐसे ही। फिर मैं राम मंदिर होके आई, तब मैंने बहुत वीडियोस डाले। मेरी मदर का वीडियो है जय श्री राम बोलते हुए, और मेरा भी, मैंने पूरा वो गाना डाल के रील बनाई, बिकॉज दैट इज समथिंग वी वेटेड फॉर जनरेशंस एंड इट वाज बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड पार्टी लाइन्स फॉर यू। मैं मंदिर होके आई, उसके बाद मैं मन से तन से राममय हो गई। मतलब अभी भी आई गेट गूज़बम्प्स थिंकिंग ऑफ जब वो जो एक्सपीरियंस था, इट वाज एन आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। तो आई वॉज सो एक्साइटेड, मैंने सारी फोटोज शेयर करी, आई ट्वीटेड, आई पोस्टेड, तब भी मुझे बोला गया कि तुम चुनाव के बीच में ये सब कर रही हो। एंड आई वॉज लाइक ठीक है, शायद मुझे ऐसे ही बोल रहे, कभी कभी होता है ना कि यू इग्नोर इट, बट देन continuously, and you know, even during the Chhattisgarh Vidhan Sabha elections, I was told to tone it down, because I would talk about कौशल्या माता का ननिहाल है, जो मुझे समझ नहीं आया। फिर मुझे कई बार बोला जाता था डिबेट्स के लिए, because I would not join any debate, I would strictly say no, that मैं एंटी हिंदू अगर कहीं लाइन जा रही है मैं उसमें नहीं जाऊँगी, मैं एक प्रो एक रिलीजन के लिए नहीं जाऊँगी, इट शुड बी इक्वल, तब मैं जाऊँगी। तो मैं नहीं जाती थी। तब भी बोला जाता था कई बार कि तुम बहुत ज़्यादा हिंदू करती हो, टू हिंदू फॉर सो दैट इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड, कि ज्यादा हिंदू और थोड़ा हिंदू कैसे हो सकता है कोई, मतलब हाउ डू यू मेजर? आई यूज्ड टू वंडर व्हाट अ स्टूपिड थिंग टू से, एंड अगेन आई यूज्ड टू थिंक कि जो ये बोल रहे हैं शायद ये लोग ऐसे ही, तभी भी आपको उसकी सीरियसनेस या उसकी वो अभी समझ में नहीं आया था। बट इफ यू सी दैट why else would the party not take a stand when something so huge happens? So tell us, I mean, I don't wish to go into the details because I'm also a woman, and of course I've heard your interviews in the past, and matlab, I don't want you to relive that experience, but for the viewers who are joining us in this podcast who may not have context, for the sake of context, without, you don't have to share details, if you can give us a sense of what happened that day, the incident. But also what I found very weird was, आपने बात करी छत्तीसगढ़ में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, and when Rahul Gandhi was parked somewhere around the same city, और वो रुके हुए थे 6 or 7 kilometers अभी, एंड तब भी आपके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जब राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ में आके, बगल में कांग्रेस पार्टी की खुद वुमेन कांग्रेस पार्टी मेंबर, so that to me was rather weird कि the top leadership was in the vicinity. So Rahul ji would stay at a camp जहाँ पे उनका travel vlogging, which I say is now travel vlogging. I said that time also, मैंने बोला था क्या कर रहे हैं, it's like a travel vlog only कि वो गाड़ी में घूम रहे हैं. I was not a part of the first yatra because I was extremely unwell, so I couldn't join the first yatra, but I was a part of the second yatra, and I was shocked. I said ये क्या, is it similar to the first yatra? If this was the first yatra also, then it's very shocking. खैर, तो Rahul ji was at the camp. I went back to the hotel at the end of the day, and there also I was managing the media, and so this person who's the chairman of the media department, first one of his spokespersons called me and he said, madam, कौन सा ब्रांड चाहिए बता दो, और वो क्या सामान चाहिए बता दो, वो आपके कमरे में पहुंच जाएगा, और उसके साथ क्या चाहिए? I said सामान चाहिए? He said हाँ, क्या सामान चाहिए, कमरे में पहुंच जाएगा। मैं कहा धनंजय जी, मैं तो अपना सामान दिल्ली से लेकर आई हूँ और रायपुर से लेकर आई हूँ, आधा सामान ले आई हूँ, एंड आई थॉट मे बी इज आस्किंग दैट आई नीड सम थिंग्स फॉर रेगुलर यूज और समथिंग, नॉर्मली जनरली पूछ रहे होंगे सिंस आई एम द इंचार्ज। नहीं, आप ब्रांड बताइए कौन सा चाहिए, आपके पास पहुंच जाएगा, वो हमारा लेने जा रहा है सामान, तो आपको साथ में क्या खाने को चाहिए, क्या चाहिए? ऐसे क्या? ही सेड अल्कोहल, तो आई सेड नहीं, मैं शराब नहीं पीती, एंड आई थॉट चलो ठीक है, मे बी ही मस्ट हैव थॉट कि द ओनली थिंग दैट आई फील इज कि हो सकता है सोचते हो कि दिल्ली से लड़की आती है, पढ़ी लिखी है, तो वट एवर, आई हंग अप द फोन। आई थॉट, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि फिर थोड़ी देर बाद फिर फोन आया, दिस टाइम द चेयरमैन हिमसेल्फ कॉल्ड मी एंड ही सेड कि अरे मैं तो पीता नहीं हूँ, अच्छा, तो लेकिन आपको जौन सा भी ब्रांड चाहिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल आपकी प्रिवेसी मेंटेन होगी और आपके पास पहुंच जाएगा। मैंने कहा तो आप नहीं कह, मैं तो ब्राह्मण आदमी, मैंने कहा मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो आप मेरे को क्यों ऑफर कर रहे हैं? आप खुद नहीं पीते तो आप मुझे क्यों ऑफर कर रहे हैं? मैं नहीं पीती। ये सब भारत जोड़ो यात्रा के जब रात को रुके हुए थे तो वो पूरा ग्रुप शराब पी रहा था, जो भी पी रहा था उसमें से, एंड दैट्स देयर कॉल, ठीक है, आप
कमरे में हो, अपने जो मर्जी करो, लेकिन एक सैंटिटी मेंटेन करनी चाहिए. अगर आप एक प्रोग्राम में हो, अगर आपको शराब पीनी है 2 दिन बाद पी लेना, आप प्रोग्राम में आए हो, चलो ठीक है, वो भी आपकी पर्सनल व्यू है. यू आर नॉट, आप कहीं पे भी उसके पास नहीं थे जो कैंप बना हुआ था, तो इट्स ओके, आप जो मर्जी करो. आप इंडिविजुअल्स हो, 50-60 साल के लोग हैं, तो इतने बड़े हैं, बच्चे हैं उनके मेरी उम्र के, तो इतना तो उनको पता होगा. लेकिन मेरे को बहुत अटपटा लगा था. एंड देयर वर 2 गर्ल्स आल्सो फ्रॉम द मीडिया डिपार्टमेंट हु वर ट्रैवलिंग विद मी, एंड दे वर आल्सो लाइक कि क्या बोल रहे हैं ना. फिर वो नीचे भी मिले, एंड मतलब होटल में भी, एंड दे ऑल, मोस्ट ऑफ देम वर obviously. So I didn't know कि किसने पी है किसने नहीं पी है उसमें. So they when they tried to say hello and everything, we moved away from there. So this is happening in a hotel. चलो ठीक है, मैंने उसको फिर भी आके बघेल जी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी. So the person who was hand managing him and assisting him, I told him कि please update बघेल जी on this. And he was also very shocked. So you did flag this. So I flagged this with the state president also. Okay. At the camp itself, I flagged this with Sachin Pilot ji also, and I flagged this with Rahul ji's team also. You flagged this? Yes. And then the next day we were at Sarguja, and I still remember I was in the same hotel in Sarguja as so Korba mein these people were in the same hotel as me, where we were staying, where this incident took place. Then the next day the yatra goes to Sarguja, where those people were not there with me, but in the same hotel we had the Congress president, state president staying. We also had the general secretary and everyone staying. So that is when I again raised it with them, and you know, सब मुझे बोल रहे थे कि यार छोटी सी चीज़ है. The ask जो नहीं, जो मेरे साथ के थे पुराने यूथ कांग्रेस वाले, they like यार ठीक है, ignore it. Why you making such an issue out of it? बोल दिया तूने, मना कर दिया, बात खत्म. I said no, it's not. You're not understanding because you're not thinking as a woman. You're thinking as a guy who does not drink properly कि offer कर दिया और आपने मना कर दिया. It is not a small thing. I have been a youth congress in charge. I have been working from NSUI days. This is not something even people of my age group have ever asked me. So, you know, if someone from your age group and you're in the youth congress and they ask you, so they think, yeah, that's a different thing. So, I still went to the president's room at night and I said, sir, you have to know this, कि ऐसे ऐसे हुआ, आपको एक्शन लेना चाहिए. And he said, oh, ये तो बड़ी गलत बात है, मैं देखता हूँ. And I raised this with everyone. चलो उसके बाद बात ख़त्म हो गई. I also went back to Delhi and I was supposed to come back, but unfortunately my grandmother passed away and I couldn't come back for 1.5 months. So उस बीच में मैं, after she passed away, I went to राम मंदिर. जब, and that was, तभी वो कहते ना ताज़ा ताज़ा था ये वाला इशू, जब मैं फिर पार्टी लाइन के खिलाफ गई. एंड आई वाज टोल्ड कि इलेक्शन के टाइम पे क्यों गई थी, मतलब गई थी तो फोटो क्यों डाल रहे हो. अच्छा, इतना क्लियरली आर्टिकुलेट करते थे. हाँ, वो बोलते थे कि, तो फिर मैं तभी सोचती थी कि ऐसे ही यू नो बोल दिया तो ठीक है. तो उसके बाद देन आई वेंट बैक टू रायपुर. 1 month आई वाज इन रायपुर एंड ऑन द 30th after Khadge ji's visit, the next day Pawan Khera ji was supposed to come to Raipur. So as a national media coordinator, it's been my responsibility to, you know, manage media and everything. So I had just given a minute back on Khadge ji in the room. Which you told us. हाँ, एक minute पहले, and the next minute I'm talking to the media chairman and I'm telling him कि पवन जी आ रहे हैं and we'll take him to so and so for a normal cup of tea to certain media houses and certain akhbar and channel, and then he'll do his press conference at 3:30 and then whatever media bites you want, and then he'll go to the airport from here. So he said कि तुम होती कौन हो, हमारे थ्रू ये होना चाहिए था, तुम कौन होती हो ये करने वाली. I said शाम के 6 बज रहे हैं. Dushil, I will call him Dushil ji, because he's not so Sushil. His name is Sushil, but he's not so Sushil. I was like, okay, not the best name. That's why I call him Dushil. So I said कि शाम के 6 बज रहे हैं, हालांकि मीडिया के चेयरमैन हैं, आपके भी मेरे भी. आपने कोई अपनी तरफ से मुझे बोला कि कल वो आ रहे हैं तो ये सब हम ये करेंगे या प्लान है, आप नहीं करोगे तो मैं तो कुछ करूंगी. आई एम नॉट गोइंग टू मेक माई चेयरमैन जस्ट कम फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड गो बैक. इफ सच अ बिग लीडर, ऑल लीडर इज कमिंग, ही हैज टू डू अदर थिंग्स एज वेल, एंड इट्स एन इलेक्शन पीरियड. सो ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग, मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ कल ही. मैंने कहा आप दे दो, एंड दैट हैज बीन हिज वे. यू नो, यू एवरी टाइम वी सेड दैट यू नो यू आर नॉट फॉलोइंग द पार्टी लाइन और व्हाटएवर, ही वुड से मैं इस्तीफा दे दूंगा. आप रैंसम यू होल्डिंग, हिंदी में बोला कि आप हर बार पार्टी को रैंसम पे ले लेते हो, इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा दे दो, मैं दे देती हूँ, कि हद हो रही है, मतलब इस्तीफा खेलना है, मैं दे देती हूँ इस्तीफा. एंड ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी. यू नो, मैंने इतनी गंदी गंदी गालियाँ कभी नहीं सुनी. आज तक मेरे कान में से पानी निकलता है उस गालियों की वजह से. इतनी गंदी गंदी गालियाँ, मतलब टू अ को पार्टी वर्कर, टू एनीवन, लाइक फॉरगेट अ वुमन, लाइक व्हाई हाउ वुड कैन यू यू अब्यूज एनीवन. और इतनी, मतलब आपकी वोकैबुलरी देखो फिर क्या है, और आपकी
सोच क्या है एंड यू नो आई एम टेलिंग यू, एंड डर भी नहीं लग रहा है मुझे, तो ये और लग रहा कांग्रेस ऑफिस में हो रहा है, स्टेट ऑफिस में, ये भी नहीं कि बाहर कहीं हो रहा है. एंड यू नो सी व्हेन यू कम फ्रॉम स्टूडेंट पॉलिटिक्स यू मीट ऑल काइंड ऑफ पीपल इन कॉलेज, एंड आई थिंक कॉलेज में सबसे ज्यादा गालियां सबको आती हैं. वो नॉर्मल एज होती है. मैंने तब भी इतनी गालियां नहीं सुनी थी किसी के मुंह से. इतना ये लेवल था. अरे इतनी गंदी गंदी, अब मैं क्या बोलूं. कोई अगर अनपढ़ आदमी होगा ना वो भी नहीं देता होगा ऐसी गालियां. एंड इतना चिल्लाया वो मुझ पे. एंड देन आई ऑल्सो गॉट हाइपर एंड आई सेड कि व्हाट नॉनसेंस इज दिस, आई एम योर इन चार्ज, आई एम अ वुमन, यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दैट. एंड बाहर स्टाफ बैठा हुआ था तो मैं चिल्ला के बोली, जाओ नीचे से जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को बुला के लाओ. कोई नहीं उठा, कोई नहीं हिला. अच्छा, ही इज बीन डूइंग दिस continuously पहले भी, because I've been in charge for 2 Vidhan Sabha elections. The previous Vidhan Sabha election also, it went on camera also, and one place ki he fought and then my hand was shivering because वो इतना आपको डरा धमका देता था गाली गलोच करके, verbal abuse से, कि you know they had to call a doctor once after the press conference and he only called that doctor. अच्छा. And he was also the head of the medical cell of the Congress, जिसको बुलाया था. तो मतलब पहली बार का नहीं था, ये कंटिन्यूसली गाली गलोच करता था और अगले दिन माफी मांग लेता था. नहीं मतलब दिस इज अ सिम्टम ऑफ द जनरल वर्क कल्चर. इसका मतलब कि कोई डर है ही नहीं. एंड आई हैड रेज्ड दिस विद द ये इसका जो कंटिन्यूस बिहेवियर है वो पवन जी को भी मैंने बताया हुआ था, और मैं कंटिन्यूसली स्टेट प्रेसिडेंट और सचिन पायलट जी को भी ये बोलती थी कि आप लोग इस पर एक्शन लीजिए. ठीक नहीं है तो यार इलेक्शन तक खींच लो, तो आप फिर सोचते हो यार ठीक है हम खींच लेते हैं, क्या कर सकते हैं. उसके बाद वो कहते हैं ना, बार बार चोट लगती है, स्क्रैचेस लगते हैं, तो आप उस पर बेटनोवेट लगा लोगे या फ्यूसीबेट लगा लोगे कि ठीक हो जाएगा. ठीक है. गाली गलौज तो जैसे ही मैंने वो कहा, उन्होंने ऐसे इशारा किया. उस कमरे में टोटल ये 3 आदमी थे, वो आदमी खुद और 2 और प्रवक्ता. 2 उठे और उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया. तो कमरे के अंदर इसी साइज़ का कमरा था वो, और इधर बहुत बड़ी टेबल थी, तो वो आदमी यहाँ था, मैं यहाँ खड़ी थी, और 2 आदमी दरवाजे के आगे ताला बंद करके खड़े हो गए. To intimidate you essentially. That I leave it to the viewers' discretion and to मतलब उनकी क्या इंटेंशन थी मैं नहीं जानती. एंड ये कांग्रेस के ऑफिस में हो रहा है. ऑफिस में हो रहा है. ऑफिस में हो रहा हिम्मत है. उसके बाद मैं चिल्लाई, मैं बहुत रो रही थी. एंड जो वो मैं बाहर जाने की कोशिश करी तो वो 2 लोग दरवाजे पे खड़े हो गए. आई डोंट नो उन दोनों में से किसने दरवाज़ा बंद किया था, बिकॉज इतना हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रहा था. तो उसके बाद अब मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं. इट वाज पता नहीं कैसे मेरा दिमाग चला. एंड आई जस्ट पिक्ड अप माय फोन एंड मैंने कैमरा ऑन किया और मैंने ऐसे रख के कहा कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है फेसबुक लाइव पे. एंड आई सेड फेसबुक पे लाइव है, रिकॉर्ड तो भैया आप वो मेरे से फ़ोन छीन लेते, कुछ कर लेते. तो मैंने कहा सब लाइव है. तब वो कहने लग गया, बदतमीजी कर रही हो तुम मुझसे, तुम बदतमीजी कर रही हो, मैं तो कुछ नहीं करा. मैंने कहा अब बोलो जैसे बोल रहे थे. तो वो नैरेटिव उधर चेंज हुआ. फिर मैंने उन लोगों को हटाया, धक्का देके दरवाज़ा खोल के, मैं उन लोगों को धक्का देके दरवाज़ा खोल के भागी मैं, और नीचे भागती भागती गई फर्स्ट फ्लोर से. एंड सी इट वाज मतलब पहले एक डिस्टेंस भागी, फिर सीढ़ियों से नीचे गई, फिर एक और डिस्टेंस भाग के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के कमरे में गई. वहाँ पे रोई, वहाँ पे बैठ के मैंने उनको पूरी बात बताई. एंड सब शॉक में थे कि ऐसे कैसे. दे सेड बुलाओ उसको. जब उसको बुलाया वो भाग चुका था, उसने फ़ोन काट दिया. And he ran away from the office. I sat in that office for half an hour after the entire incident, and that man ran away after it happened. So, अगर वो गलत नहीं होता तो वो भागता क्यों? Right. He would have faced it. I sat there. He would have come and said that. उसको क्या पता था मैं क्या बोलने वाली हूँ ना. उसको ये पता था कि क्या हुआ है और ये लड़की बोलेगी, इसीलिए वो भागा. अगर कुछ नहीं हुआ होता तो वो भागता क्यों? Right. सिंपल बात है, क्योंकि ऐसा तो कुछ था नहीं. आप वहीं रहते, आप अपनी कुर्सी छोड़ के क्यों दुम दबा के भागते? So then I called up Sachin Pilot ji. But you cannot speak to Sachin Pilot ji. He's never available. He doesn't pick up his phone. So his PA का जो number है जिस पे बात करते हैं. And I said I need to speak to sir and something very bad has happened. And I gave him a gist and he said we are going to Sarguja. We are in the car. So I said गाड़ी में ही तो जा रहे हो, आप बात तो करा दो. So he said wait नहीं, कुछ बात सुनी. He said then that man spoke to me कि 7 तारीख तक चुप रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. And he was very rude कि इलेक्शन का टाइम है, निकाल लो करके. मैं कहा क्या करूँ. I called up Bhupesh Baghel ji because I knew that man had been made the chairman by him only earlier. And everybody knows he's Bhupesh Baghel's person and he works for him. I called him, he didn't pick up the phone. I called up Pawan ji didn't pick up the phone because he was in a rally. Called up Jairam ji, he never picks up the phone. क्या काम कर रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना आपके खुद के ऑफिस में हो गई और आप लड़की को फ़ोन नहीं कर सकते. Right. So then nobody called me. सबको लगा होगा कि चुप हो जाएगी,
Maybe they were trying to give you time to like cool off and maybe दब जाएगी बात. So These all ये these party leaders. insensitive people ना हाँ. कि मतलब किसके, because the narrative had already been built, because 20 minutes हो चुके थे पूरे इंसिडेंट को जब तक मैंने कॉल किया. तो आप देखो ना किस तरीके से एंड किसके से स्क्रिप्टेड था. इमेजिन व्हेन यू टॉक अबाउट सचिन पायलट, ही वांट्स टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट. घर के अफेयर्स आपसे हैंडल नहीं हो रहे एंड इफ ही सेज कि मुझे कुछ पता नहीं था एज जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ही शुड रिजाइन फ्रॉम द पार्टी इफ ही डजंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन हिज स्टेट. Yeah. So, Absolutely. सेइंग कि मुझे पता नहीं था, मुझे ये नहीं क्या, अरे इस्तीफा दो तुम. अब तुमसे एज इंचार्ज स्टेट नहीं चल रहा, तुम राजस्थान चलाने के सपने देख रहे. सो देन भूपेश बघेल जी हु हैड कॉल्ड, ही वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, ही कॉल्ड मी बैक and he said क्या हुआ. I spoke to him for 3 minutes. Thankfully I've kept, after the second day I kept all the records. I took screenshots कि कल को ये लोग कहेंगे कि, और वो हो ही गया कि सचिन पायलट ने कहा मुझे पता नहीं है. So I called up Bhupesh Baghel ji, he didn't pick up, he called me back and I told him the whole story 3 minutes में कि ये हुआ, and I was crying. I was coming back from the doctor and my BPM was also that time at 138. 1 hour after the incident was 148 and 138. And I have my iWatch records to prove that. So he said कि he listened to the whole thing and I said रोते रोते, I said आप मेरे पूरे परिवार को जानते हो, इतने सालों से मुझे जानते हो, मैं अब राजनीति ही छोड़ दूंगी. That's the first thing. See, if that would happen to your workplace, you'll say कि मैं काम करना ही छोड़ दूंगी. Because That's the state of mind. Yeah. And when nobody is ready to listen, तो he said नहीं राजनीति मत छोड़ो, तुम छत्तीसगढ़ छोड़ दो. अच्छा, मतलब यहाँ से कट लो, भाग लो. जबकि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो उस पद पे रहा हुआ है, जो एक प्रदेश का मुखिया रहा हुआ है, उसको ये बोलना चाहिए कि अच्छा अगर ऐसा हुआ मैं पता करता हूँ, तुम अपना ध्यान रखो एंड we'll take some action, whatever I'll find out, and if what you are saying is true, तो मैं उस पर बोलूँगा जो भी है. देखो पार्टी का जो पहला रिएक्शन होना चाहिए था कि दोनों लोगों को आप शो कॉज भेज दो एंड दोनों लोग काम से हटा दिए जाए फॉर द टाइम बी. That is how any place works. Right. But till date, no action has been taken against that man. अच्छा, ये सब इतना कांड हो गया उसके बाद डेली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठा है स्टेज पे कांग्रेस की. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन खेड़ा जी के साथ जो अगले दिन हुई उस पे बैठा. उसके बाद गुरदीप सप्पल जी के साथ बैठा, उस हेड ऑफ एडमिन ऑफ द कांग्रेस. ही इज़ अ वेरी बिग मैन. ही सैट विद हिम, ही सैट विद आलोक शर्मा जी, हु वेंट टू डू अ पीसी. और उसके बाद जब मैंने पार्टी छोड़ी तो पार्टी ने उसको प्लेटफॉर्म दिया. मुझे अलग अलग चीज़ें मेरी मदर तक पे पहुंच गए. आप जस्ट सी द डर्ट एंड फिल्थ दैट इज़ इन द माइंड्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी. कि कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म से देखो, अगर वो वहाँ पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो दिल्ली से परमिशन आई होगी कि क्या बोला है, बिकॉज दिल्ली डिसाइड करेगा इतने बड़े मैटर पे. वो वहाँ बैठ के मेरी मदर को घसीट के लाया जिनका कुछ लेना देना नहीं इस चीज़ से. एंड एवरीबडी नाउ द कांग्रेस इज ट्रोलिंग मी कि तुमने FIR नहीं करी, तुमने लीगल एक्शन नहीं लिया. सबको लीगल एक्शन में लेने वाली हूँ. जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मंच से बैठ के मेरी मदर को इसमें घसीटा, जिनका कुछ लेना देना नहीं, जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए. और मेरे को, कैन यू बिलीव इट, दैट मैन हैज़ द ऑडेसिटी टू सेंड मी अ डिफॉर्मेशन नोटिस. अच्छा, और खुद मुझे बोला गया जब मैंने प्रियंका गांधी जी के खिलाफ ट्वीट किया. मैंने न्याय तो मांगा क्योंकि मैंने राहुल गांधी जी के ऑफिस में मैसेज किया, मैंने प्रियंका गांधी जी. सो एवरीवेयर आई वेंट, राहुल गांधी जी ऑफिस टोल्ड मी कि स्पीक टू जयराम जी. आई डिड दैट. मैंने सबको मैसेज किया, सो नो वन कैन से. तब जब मेरे को कहीं से जवाब नहीं आया, कोई हेल्प नहीं आया, आस्क फॉर टाइम, आई गेव माई ordeal and everybody read the message and they all know me. They all have my number, I have their number, and they've been talking to me earlier also on certain issues because I'm a media coordinator, so everybody knows me. So tell me something. प्रियंका गांधी का इतना स्लोगन है पूरा, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ. As a, and she's in the top leadership, she's a woman leader and she keeps talking about women's empowerment and women as individuals, seeing women beyond their gender. I remember all Priyanka Gandhi speeches. आपने उनको नहीं reach out किया? Sandeep Singh, I messaged, there was no response. Messaged once or twice, I tried calling, no one picked up. So I waited, and then the next day Priyanka ji was coming to Chhattisgarh for a rally. So I tweeted कि चलो आपको मेरा मैसेज नहीं मिला, आप मुझे फॉलो करती हो ट्विटर पे तो मीडिया भी उठाएगी तो आपको मेरी गुहार तो पता चलेगी. एंड आई ट्वीटेड सेइंग कि दुशील का कक्का का दुशील पे, बिकॉज भूपेश बघेल जी इज नोन एज कक्का. एंड it was very evident from the way he told me to leave Chhattisgarh. And I was also told that there's a lot of pressure from Bhupesh Baghel not to take action on
Sushil, so I knew what was happening. So I wrote कि दुशील का कक्का का दुशील प्रेम न्याय नहीं होने दे रहा, लड़की हूँ लड़ रही हूँ, एंड मर्यादा पुरुषोत्तम, नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स, आई डोंट रिमेंबर, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के निहाल में आपका स्वागत है दीदी. Still nothing happened. So saying कि मुझे तब भी नहीं पता, हर मीडिया में वो आया था. There was not one local or national thing. Obviously, and if you still don't know, then you please leave politics. ठीक है, and I was ignored and everybody was waiting. Even the media picked it up. We were hoping. Everyone was in the hope that at least she would talk to me. She just had to pick up the phone and say, यार, you know, don't do this. She could have gotten angry at me कि why you doing this? Don't you trust us? कुछ तो बोलती, चाहे डांटती, कुछ करती. चुप रही. Total radio silence. Radio silence. Radio silence for ladki hu lad sakti. And then when did you leave the Congress party? So then I went and attended. My mother came to Raipur because I was unwell because of the thing. I went and attended the inquiry. I went to the Congress office. I was hounded by the media. I still did not speak to the media, and the only thing I said was, मुझे यकीन है कि मुझे न्याय मिलेगा. I'm here. And I went there and I told the president, आप मेरा बयान लिखित में ले लीजिए and give me a receiving. He refused to take my बयान in writing. He said, मैं सुन रहा हूँ, कर रहा हूँ. And why I'm bringing this topic in here is because everybody should know how the Congress handles. अब वो न्यायाधीश की कुर्सी पे है, स्टेट प्रेसिडेंट की, पूछा जाए. And he said कि on a question when I said, remember I had raised this with you that he offered me alcohol. So that man said, आप पीती हो? थोड़ा तो पीती होगी कभी कभी. मतलब मैं irrespective, पहले तो मैं पीती नहीं, पर अगर मैं पीती भी होती तो how does that concern you? How does that affect the proceedings of what happened? So I understood what's going to happen. Then they didn't send a report. He kept calling me, अच्छा और क्या. फिर मुझसे फ़ोन करके मुझसे पूछा रहा, सर मैंने आपको बोला ही था मैं लिखित में दे देती हूँ. उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ. I waited. I went back to Delhi the next day with my mother. उस दिन भी शाम तक मैं वेट करी. My flight was in the evening. I went back home. I waited another day. Then on, I think उसके बाद मैंने रिज़ाइन किया. उसके अगले दिन I resigned in the afternoon. I again waited 24 hours. शायद रेजिग्नेशन के बाद कुछ तो एक्शन लेंगे. कुछ नहीं हुआ. Then I did the press conference. जब उसके बाद भी मैंने 24 hours वेट किया, जब तब भी कुछ नहीं. और फिर पार्टी ने मंच दे दिया उस आदमी को ये बोलने को और मेरी मदर पे इल्जाम लगाने को और मुझ पे व्यक्तिगत इल्जाम लगाने को, जो है वो कर दिया. तब मैंने फिर पार्टी छोड़ी. Now tell me something. This has been your past, right? Coming to the present, if somebody would ask very you, pleasant present. a very pleasant present, okay. आपने कांग्रेस में वर्किंग कल्चर देखा है, वहाँ पर लीडरशिप देखी है, डिसीजन मेकिंग वहाँ कैसे होती है, एंड देन अब you've been here in Delhi at the. Let me add one thing. So after I left the party, you know, Priyanka Gandhi ji unfollowed me from Twitter. अच्छा. So जब तक मैं न्याय मांग रही थी, so she knew ना, she was following me on Twitter. मैं न्याय मांग रही थी, कर रही थी, तब तक कुछ नहीं बोले. जब मैंने इस्तीफा दे दिया, she unfollowed me from Twitter. That's the only thing she did. That's how. So लड़की हूँ लड़ सकती हूँ is like जो भी लड़की कांग्रेस में है उससे मैं लड़ाई करूँगी, वो उनके लिए है. मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, लड़कियों से ही लड़ूंगी. क्योंकि लगातार, if you see Archana Gautam, who was a leader from Uttar Pradesh, and she herself went to her rally and खुद ही टिकट दी थी, नारा दिया था लड़कियों. उसको भी सेम छत्तीसगढ़ में अब्यूज़ किया गया था by her own people, and that girl had claimed that Sandeep Singh, only her PA, had misbehaved, and then later she was bashed up by Congress people in Chaubis Akbar Road, that is the headquarter of the office. So see the similarities na. And Priyanka Gandhi ji सबके लिए ढाल बन के. After that, Priyanka Gandhi blocked her on WhatsApp. Okay. That girl showed me her phone. She said, see, when I spoke to her कि दीदी के क्या, because that girl also refused to believe that Priyanka Gandhi could have orchestrated it, and she said, but when she saw me, she said, देखो मेरे से बात करती थी, and जब मैंने बोला कि ऐसा मेरे साथ हुआ है दीदी, क्यों, मैं तो सिर्फ आपसे मिलना चाहती थी, तो प्रियंका गांधी जी blocked her. God, ये this is the reality of the real face of महिला न्याय भी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ. Okay. So this has been your past and recent past. Now coming to you've of course joined the BJP. I'll ask you two questions. Yeah. One, जो आपने पहले भी बताया, the ideological reasons for joining BJP, and then the non-ideological reasons also for joining BJP. And I want you to tell me what really motivated you to
of course, leaving Congress is one thing, but why would you join BJP for ideological or non-ideological reasons, and which is over and above the harassment you face from Congress? Like, on its own merit, why did you join BJP? See, I had no intention of joining the Bharatiya Janata Party or any political party for that matter. When I was fighting for justice, no one was standing by me. Yes, although I would not shy away from saying this that जब मैं छत्तीसगढ़ में थी, the Chhattisgarh government through the media and continuously reached out to me and also ensured my safety. And they ensured me that till the time you're in Chhattisgarh, nothing will go wrong with you. And I say this with utmost responsibility कि छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी की सरकार है, इसीलिए आज आई एम सिटिंग हियर विद यू एंड टॉकिंग. अदरवाइज आफ्टर व्हाट आई फेस एंड वहाँ पे अगर कांग्रेस की सरकार होती या देश में कांग्रेस की सरकार होती तो राधिका खेड़ा वुड नॉट बी सिटिंग हियर विद यू ऑन द काउच एंड हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन. Okay. Okay. All right. And I say this with utmost responsibility. So the thing is that nobody reached out to me. I say the only way they just ensured by reaching out by saying that they will provide me protection, and they were also very kind in saying that I can go to any police station and file a complaint. I don't even have to go to the concerned police station. I can go anywhere where I feel comfortable, and cognizance will be taken and an FIR will be lodged. I still didn't go because that man has 3 daughters. One daughter is an IS officer, newly अच्छा. joined, I think about 6 months or a year back. 2 और छोटी लड़कियां हैं. I still remember during the विधानसभा elections, वो मेहनत करके IS officer बनी है तो उसकी क्या रह जाएगा कि उसके फादर ने ऐसी हरकत करी. You know, जिंदगी खत्म हो जाएगी, लाइक या वो 1 मिनट में जा सकते थे जेल मेरी कंप्लेंट पे. या पर उससे एक पूरा परिवार एक आदमी की इतनी घटियापन की वजह से खत्म हो जाता. 3 बेटियां. एंड छत्तीसगढ़ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली एंड बॉम्बे. right. Perceptions and these Yes, that would be a very FIR difficult cases, time yeah, for will those. make a lot And of the young boy जिसकी अभी नौकरी लगी है, क्या right रह जाता है. right. So that is why I chose not to put in an FIR. अभी भी मुझ पे प्रेशर आता है, but now I will be taking legal actions. yeah. So continuously, no one got in touch with me. I was fighting my own battle. But then I realized for 22 years, I have been fighting for nyay only for people. And if today I can't stand up for myself, Yeah. how will I stand up for the people that I want to or wish to represent later on? And that can only be done if I am politically active. If I sit at home, there's only so much that I can do. Maybe as a social worker, there's only so much that I will be able to do. But if I'm a part of the process, if I'm a part of the lawmaking, if I'm a part of a political party, there is so much more that I can do for people. In terms of impact on the ground. Yeah. It's not been very long since you've been in BJP, but 2 days. 2 days. Okay. So, in the first 48, 72 hours, what's your first impression? Like, how different is the work culture कांग्रेस का वर्सेस बीजेपी? आप कांग्रेस में इतने साल रहे हो, बट 2-3 दिन में आपको क्या फर्क दिखा? So, Congress is cultureless. Okay. What happened with me in Congress office is not culture. Simple. And there is a remarkable difference in both the parties. और वो मुझे 3 दिन में ही पता चल गया. They are 2 separate universe. I would not even say कि 2 अलग देश है. 2 separate universe completely. And everybody is respectful towards each other. I've seen from the guard at the gate to the highest office bearer who's at the party office. The spokespersons who I meet every day after that, they have been so welcoming. And there is a different culture, you know, every day all the spokespersons come and meet everyone at the department. I was national media coordinator for 7-8 years. I don't remember a meeting with the spokespersons and the media chairman ever. अच्छा. And I used to keep saying, you know, maybe we should have there was one meeting once during elections when Rahul ji met everyone. And otherwise I used to keep saying we should have regular, you know, programs where the spokespersons interact with at least the chairman. But our chairmans have never had time. Where they're busy, I don't know, when we're not even in government. So here I see everyone's in the office and everyone's discussing what's happening. Everyone's aware of what's happening. And when you talk to each other, you know what is happening and how to take things forward. Everyone is a part of decision making. It is not run by one family and those 2-3 people or their PAs, because it's the PA culture that is here, who run the party. यहाँ पे वो नहीं है. यहाँ पे every person is a part of decision making.
तो वो राम लल्ला का जो इतना विशाल परिवार है वो एक परिवार सच में है, नॉट a Gandhi Parivar who controls everything. Everybody is a part of decision making. Everybody is considered. Their opinion is considered. And it was a drastic change. अभी तक तो मैं 2-3 दिन से बस देख ही रही हूँ. मुझे कभी कभी बोलते भी है, what's your opinion? I'm like, let me grasp things. And when I go to the office, the staff also, or you go anywhere, I have been a strong critic of the BJP, and I have been welcomed. The way I've been welcomed, I was thinking that pata nahi, there's going to be resistance, or that's when you go to a new place you feel. But all those people who I have fought with on debates are the ones who have been the most welcoming to me. Right. And और कांग्रेस में जस्ट आस्किंग यू, कांग्रेस में सब स्पोक्सपर्सन्स के ग्रुप्स बने हुए हैं कि आज इसको नहीं जाने देना है, उसको नहीं जाने देना है, एंड कैसे ये इस ग्रुप का है, वो उस ग्रुप का है, वो इस लीडर का है. यहाँ पे अभी तक तो 4 दिन में मैंने ऐसा कुछ नहीं. तो एक बात बताइए, कांग्रेस में जैसे जो टॉप लीडरशिप है, अगर आपको, खैर आपने एग्जाम्पल दिया कि आप अपनी आवाज़ न्याय के लिए ऊपर तक नहीं पहुंचा पाई, बट जनरल डे टू डे फंक्शनिंग में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कितनी सेंट्रलाइज्ड है in the top leadership? And जो general Congress party workers हैं, is there a democratic process? No, there's no democracy. Like, if I'm a media coordinator, तो हमारी राय तो मानी जानी चाहिए. And I can say this with utmost guarantee and utmost responsibility that 90% of our spokespersons are not in favor of what we took the stand on the Ram Mandir. अच्छा. Our spokespersons are not in favor of our anti-Hindu stance. How can any spokesperson be in favor of going and defending Sam Pitroda every second day? What do you think of that? What is happening? That is the ideology of the Congress, which is coming out into the open. That is why they are still a part. That is why Sam Pitroda, to Manish Shankar Iyer are still a part of the party. If that was not the original vichardhara of the Congress, तो उनको पार्टी से निकाल देते. Tell me, after Sam Pitroda spoke about inheritance, कि inheritance tax लगेगा, कोई इस्तीफा आया? निकाला गया क्या? दैट मीन्स ये बिल्कुल साफ है कि अगर इंडिया अलायंस या कांग्रेस सरकार बनाती है तो इनहेरिटेंस टैक्स लगा जाएगा. मतलब लोगों को, वोटर्स को ये, मतलब क्योंकि कांग्रेस उसके बाद आकर के कह देती है कि नहीं, तो पार्टी से निकाल देते. दूसरी बात, जब उनको भारतीय नहीं दिखते, भारतीयों में चीनी, अरबी, अफ्रीकी और अंग्रेज दिखते हैं, तो उसके बाद जब इतना हंगामा हुआ कि एंटी नेशनल कहा गया, तो उन्होंने इस्तीफा दिया. वो अभी भी कांग्रेस का हिस्सा है. अच्छा. उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है. So it's not कांग्रेस asking him to resign. कांग्रेस ने अभी तक उनका हाथ नहीं छोड़ा है. अच्छा. अगर कांग्रेस किसी को रिजाइन करने को क्यों बोलेगी? अभी सिर्फ जो रेजिग्नेशन हुआ है वो सिर्फ इसीलिए हुआ है कि अंदर की बात बाहर कैसे आ गई. Okay. अगर ये पार्टी की लाइन नहीं होती, ये पार्टी का बिलीफ नहीं होता, एंड दिस इज नॉट व्हाट द पार्टी वाज गोइंग टू डू, इफ यू आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग इनहेरिटेंस टैक्स, इफ दिस इज नॉट द ट्रूथ, दे शुड हैव suspended him from the party, removed him for 6 years. Right. Why not? You removed Ankita Datta, who was asking for nyay against the Youth Congress National President Srinivas, and you threw her out of the party because she was struggling for 2 years to ask for nyay. Why haven't you thrown this man out? And he, हुआ तो हुआ, उसके बाद क्या क्या हो जाता है. Continuously मनीष शंकर अय्यर को निकाल दिया क्या पार्टी ने? कहाँ निकाला है? वो भी ट्रू फेस आया है सामने. So the party is standing by all of these people. If that was not the real ideology of the party, they would have been thrown out. Okay, this puts a lot of things in context. If you are going against your media house, for example, will you be just asked to resign and given another job and be a part of the company, or you will be thrown out from the company? He has resigned and he continues to be a member of the Congress. He continues to work for the Congress. He will only not work in official capacity. रिजाइन किया, पर मेरे को तो कभी कहीं पे सुनाई भी नहीं दिया कि रेजिग्नेशन हैज बीन एक्सेप्टेड. कहीं आपको कोई, हैव यू टिल डेट, हैज अ लेटर कम दैट कांग्रेस पार्टी हैज और ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज accepted the resignation of Sam Pitroda. We thank him for the services and he shall be replaced by so and so. Election time पे आप इतने बड़े पद को खाली क्यों रखोगे? Right. और कहाँ acceptance आया that his acceptance has been, his resignation has been accepted? Okay. सिर्फ दिखाने के लिए एक इस्तीफा दे दिया जाता है, एंड जब बारी आती है एक्सेप्टेंस की तो कुछ आई नहीं. मतलब वी कैन अज्यूम कि ये वही है जो अंदर पूरी इलेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर वापस आ जाएंगे सैम अंकल. सो दिस इज ट्रू, द ट्रू फेस ऑफ राहुल जी, सैम अंकल, एंड सैम अंकल सच बोल दिए, एंड दैट इज व्हाट राहुल जी's thought is
दैट इज व्हाट द पार्टीज थॉट इज कि इनहेरिटेंस टैक्स आएगा, कि राम मंदिर के बारे में भी जो उन्होंने बोला है वो उनकी थॉट्स हैं. Okay. Were there any instances of narratives जो कि एज अ मीडिया पर्सन कांग्रेस में आपको बोले जाते थे, सम बायस, हाँ बोलने को, ऐसे बायस नैरेटिव्स जहाँ आपको कभी कभी लगता था कि यार ये बीजेपी के अगेंस्ट बोलना है, बट हाँ मतलब यू वुड ऑल्सो फाइंड इट टफ? ऑब्वियसली हर पार्टी की लाइन आती है, स्ट्रैटेजी आती है, हमारा भी ग्रुप होता है स्ट्रैटेजी ग्रुप. तो उसमें ये बोला जाता था कि अब हर डिबेट को कर्नाटक पे लेकर जाओ. अच्छा. जैसे जब ये कर्नाटका की सवाल, आई वाज रीडिंग दोज बिकॉज जब से 30th को ये हुआ था तब से मैं कुछ भी ज्वाइन नहीं करी थी. आई वाज सिटिंग इन द होटल अलोन एंड आई वुड रीड द ग्रुप एंड एवरी टाइम समवन वुड से कि कर्नाटक में ये हुआ, मणिपुर वाला ये उठाओ. एंड आई वुड ऑलवेज हैव दैट अर्ज टू राइट कि हेलो मैं भी हूँ, हैव एनी ऑफ यू स्पोकन अबाउट मी, नॉट वन वुमन, नॉट घर में ही जो सुप्रिया श्रीनेट आज मेरे खिलाफ बयान दे रही है, जो और लीडर्स मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं, आपके घर में हो रहा है, बोलो ना कुछ. राहुल जी इज राइटिंग अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर सेइंग कि व्हाट हैपेंड इन कर्नाटका इज माय नैतिक जिम्मेदारी दैट आई रेज इट. नैतिक जिम्मेदारी मैं हूँ बॉस, मैं आपके लिए 17 साल की उम्र से काम कर रही हूँ, आप कब मेरे लिए बोले. सो दैट वाज वन. देन ये बोला जाता था कि कंटिन्यूसली ब्रिंग इट टू कि हाउ द बीजेपी इज गोइंग टू फिनिश द संविधान एंड संविधान के विरोधी है, हाउ द बीजेपी इज गोइंग टू फिनिश आरक्षण. तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट डॉसियर आते थे कि कुछ किया जाता था. हाँ कि यू हैव टू ब्रिंग ऑल द. अगर मैं कभी पूछती थी सर हम इस पे तो फंस जाएंगे, ये जो है हमारी पार्टी ने गलत किया है फॉर एनी एग्जाम्पल फॉर दैट रीजन, तो बोलते थे नहीं तुम नैरेटिव उस पर ले आओ घुमा के, हाउ दे आर अगेंस्ट द संविधान एंड दे आर द नॉन सेक्युलर पीपल. तो वो तो होता ही था. Right. And now that after so And many... everything was clear that our entire fight has to be on how the Bharatiya Janata Party is going to संविधान खत्म कर देंगे, कैसे रिजर्वेशन खत्म कर देंगे. Right. एंड व्हेन एक्चुअली मैं भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही थी, वो मुझे दिखाई दे रहा था, मैं बोलती थी अब क्या क्यों, बट पार्टी की लाइन है तो फॉलो करनी है. एंड इन रियलिटी असली में संविधान तो यही खत्म कर रहे हैं. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सी इट्स हियर. संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सेक्युलर, एंड द कांग्रेस इज नॉट सेक्युलर. When you are thinking of and you have plans of reversing the Supreme Court order on the lines of Shah Bano case, and that you're going to again start the Ram Mandir controversy, and then you are also only talking about one particular religion. You have that word Bahusankyak in your manifesto. You are only continuously targeting one section, which is the majority of the population. Then you are not secular. Right. You are secular if your party people don't have to be ashamed or shamed every time for being too Hindu. So you're absolutely against the संविधान. और लगातार कांग्रेस पार्टी जब सरकार में रही है संविधान में संशोधन किए हैं, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स कांग्रेस ने किए. and then they are talking that was what also used to wonder. I said, so how are we going to justify this? We are the ones who've done this. And you're saying कि ये बोलो, तो how do you justify it? वो चल रहा है narrative. So now that आप इतने साल कांग्रेस पार्टी में रहे, now you're with BJP. Of course, now you, as a homework, you have, obviously you know the Congress manifesto and now the BJP manifesto also by heart. So you're in a very objective position right now, right? You've seen both sides of the world, and as I can understand कि आप सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटी है. So as now an independent individual, I'm not even asking you that as a BJP person or as a ex-Congress person. BJP के manifesto में ऐसा क्या है, which has made sense to you and which you think कि एक young voter should know? See, manifesto तो जो है दोनों पार्टीज का मुझे पता है, लेकिन if you look at a voter, you look at the 10 years of the government. In 10 years of the government, Congress has continuously been attacking कि बेरोजगारी है, महंगाई है, and they say the BJP doesn't talk about it. अगर उस हिसाब से बेरोजगारी और महंगाई होती तो 10 साल से the country would not be electing मोदी जी, and ज़्यादा वोटों से हर बार. You build that narrative about जातिगत जनगणना, and you still have that in your manifesto, the Congress, and you lost 3 Vidhan Sabha elections and big states, and Congress has been at its worst in Chhattisgarh. This is the lowest that they have ever been since Chhattisgarh has been created. Okay. And this is after the Bharat Jodo Yatra.
भारत जोड़ो यात्रा only made you in Karnataka and Himachal, वो भी हालत क्या है we are seeing. So in 10 years people have not lost their faith in Narendra Modi ji. The states that they gave earlier to Congress have also been taken away from the Congress. Where is the Congress now? Telangana, Karnataka and Himachal. That is where you are limited to. Tamil Nadu भी आपकी तो कुछ भी सीट नहीं है खुद के पास. You're just कहने के लिए a part of the government. So the government, Modi ji, has been working day and night. वो तो सामने है. The Congress hits out at Modi ji and you've seen how the people of the country react. You say the nastiest of words for Modi ji. They've made it all about anti-Modi. Their manifesto is more about that. Everything. No, they've made it, even all the things that they talk about. I've had a tough time trying to answer the media also. Every time I was asked that you are promising 1 लाख रुपया महिला को मिलेगा, you are promising 1 लाख रुपए युवाओं को मिलेगा, ये प्रॉमिस कर रहे हो, किसान का पैसा कहाँ से आएगा? एंड मैं पूछती थी कि वे पैसा कहाँ से आएगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका कैसे जवाब दूँ? तो क्या कहते थे? वो एक चीज़ समझाते थे जो आज तक मुझे ही समझ नहीं आई, तो मैं क्या आपको समझाऊं कि वो क्या कहते थे? मे बी उन्हें भी नहीं समझ में आई है. हाँ, मतलब मैं भी जब मैनिफेस्टो पढ़ी इतनी चीज़ें थी, ठीक है आपने जातिगत जनगणना डाली, बट दैट इज अ थिंग दैट मेड यू लूज 3 states. How can you forget that? And that is again in your manifesto. You're not talking about OROP. You formed the government in Himachal Pradesh. You formed the government in other states by promising OROP. OROP was your main thing. तो ये बहुत सारी चीज़ें थी. And BJP has been consistent. They have maintained the same things. वो करते रहते हैं पूरे और आगे करते हैं. मतलब whatever आप जो बात करते हो वो आप अपने मैनिफेस्टो में नहीं लाते हो. So and the country is not believing. Like I said, you need a person sitting in Germany making a video on something to talk to people कि क्यों मोदी जी को वोट ना दे. आप तब भी ये नहीं कह पा रहे कि कांग्रेस को क्यों वोट दे. It's a negative campaign. You are not talking about why people should vote for you in 10 years. You know, this I have raised on every platform कि 10 साल में एक आंदोलन बता दो जो कांग्रेस पार्टी ने किया हो जनहित में. एक आंदोलन. Can you come up with an आंदोलन? जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, फ्रॉम मोदी जी टू स्मृति ईरानी जी टू एवरीवन, हम कहते हैं ना कि सिलेंडर लेकर बैठते थे, अब महंगाई को लेकर, हर चीज़ को लेकर. 10 साल में अगर इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, कांग्रेस ने कितने बड़े आंदोलन किए? हैव यू सीन? एक आंदोलन हुआ था बहुत बड़ा जिसमें टायर जलाए गए थे, गाड़ियों में आग लगाई गई थी, सड़क पे छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा नेता आ गया था. कुछ ही समय पहले हुआ था जब राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलाया था, वो आंदोलन हुआ था. वरना कब ऐसे आए, कब आए इतने बड़े बड़े नेता अपने घरों से निकल के? राइट. सो आप बात क्या करो? आप बात ही नहीं कर रहे जनता के मुद्दों की, और फिर कह रहे हो जनता हमें वोट दे. And as you said, it's not so much about what they are promising, it's more about a smear BJP campaign. Yeah, that is what. वही तो ना, आप क्या करोगे? आप रोज सुबह शाम मोदी जी को गाली दोगे. आप राफेल लेकर आए, हम सबसे बुलवाया चौकीदार चोर है, हमें डिफेमेशन नोटिस आए. आई वॉज ऑल्सो वन हु गॉट अ डिफेमेशन नोटिस फ्रॉम अनिल अंबानी जी. आपने फिर वो कैंपेन छोड़ दिया. आखिर में माफी मांगी ना सबने, मांगी ना. क्या क्या किया? आप कंटिन्यूसली ऐसे नैरेटिव लाते हो, चौकीदार चोर है. देश उसी चौकीदार में विश्वास कर रहा है. राफेल लाए, चौकीदार चोर है लाए, इन लोगों ने क्या क्या, चाय वाला और क्या क्या बोला. आप पर आपने जनता को ये बिलीव कराने के लिए क्या किया कि ये हम कर रहे हैं, अगर कांग्रेस सरकार में आएगी तो हम ऐसे आपका जीवन बदलेंगे. चलो, आप कहते हैं बेरोजगारी है, तो आप बेरोजगारी को कैसे ख़त्म करोगे? आप महंगाई को ख़त्म कैसे करोगे? क्या आप बात कर रहे हो कि पेट्रोल डीजल के दाम आप कम करोगे? कहीं लिखा मैनिफेस्टो में? जो ये रोज़ बोलते हैं महंगाई है, मैनिफेस्टो में कांग्रेस के कहाँ लिखा है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे या डॉलर और रुपए का क्या चल रहा है? वो कहते हैं ना, सारे टाइम एक लड़ाई थी कि कांग्रेस यूपीए के टाइम पे बैरल का रेट बहुत कम था और हमने फिर भी इतना सस्ता पेट्रोल दिया, और अब ज़्यादा था, सॉरी, बैरल का रेट. अब बीजेपी के समय में बैरल का रेट कम है, तो भाई अब अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि बैरल का रेट ये है तो हम पेट्रोल डीजल को कम लेकर आएंगे. आपने महंगाई से पीछा छुड़ाने के लिए क्या कदम प्रॉमिस करे? क्या बात कर रहे हो आप? क्या आप बोल रहे हो कि राफेल है, चौकीदार चोर है. आप रोज़ अडानी अंबानी करते हो, चुनाव आ जाते हैं तो अडानी अंबानी को भूल जाते हो. और सबसे ज़्यादा बड़ा कितना, 12-15 हज़ार करोड़ का कितने का आपने MOU साइन कर लिया है तेलंगाना में, हिमाचल में. आप हर जगह आप उनसे ले रहे हो, और यहाँ पे आके आप सोचते हो कि देश की जनता बेवकूफ़ है. मैं यही बोलती थी कि सर, अडानी अंबानी को आप गाली देने को कह रहे हो कि पिंग इट टू अडानी एंड अंबानी,
और आप खुद ही वो तेलंगाना में आप ये कर रहे हो, खुद ही राजस्थान में कर रहे हो, खुद ही हिमाचल में कर रहे हो, और आप बोल रहे हो मतलब हम स्पोक्स पर्सन क्या है कि आप लोग कुछ भी करते रहो और हम जाके वो नैरेटिव जो आप चाहते हो उस पर घुमा के ले आए। जनता हमें बेवकूफ़ समझती है। आज कांग्रेस के लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि पहले तुम झूठ बोल रही थी, आज सच बोल रही हो। भाई मैं पार्टी लाइन पे चल रही थी और मैं सोचती थी, क्योंकि मेरे लिए मेरी पीढ़ियां कांग्रेसी रही हैं, मेरे लिए था कि हाँ ये आज भी गांधी जी की पार्टी है, पर मैं भूल गई थी कि ये वो पार्टी नहीं है, ये तो इंदिरा जी ने तोड़ के अपनी पार्टी बनाई थी, कांग्रेस आई उसके बाद की पार्टी। कितनी बार कांग्रेस टूटी है, फिर भी ये होप कर रही थी कि जब हम कहते हैं कि हम गांधी जी की पार्टी के हैं, हम अंबेडकर जी की पार्टी के हैं, तो शायद तो कुछ होगा। लेकिन होता ना, जब आप 17 साल की उम्र में आते हो, एक ब्लैंक स्लेट होते हो, आइडियलिस्टिक भी होते हो। हाँ, और आप उस वक्त सोचो कि नहीं मेरी फैमिली में स्वतंत्रता सेनानी रहे, जेल रहे, तो मैं तो कांग्रेस में जाऊंगी, मेरी फैमिली में रहे। यू वांट टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर फैमिली, एंड देन दिस इज व्हाट यू सी। अच्छा, जब यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में होते हैं, यू नॉट क्लोजली वॉचिंग क्या है, तब भी आप बिलीव कर रहे हो तो नहीं हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम इन चीज़ों के खिलाफ है। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में बहुत जोश होता है, आपके साथ ब्लाइंडर्स होते हैं, वो किसी भी युवा उसमें होगा, बिकॉज जोश होगा कि हाँ हम तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पर जब आप देख रहे हो एज अ स्पोक्स पर्सन क्या हो रहा है, कहते ना थोड़ी थोड़ी देर में एक खरोच लगती थी, उस पर डिटॉल सैवलॉन लगा दी, पर अब पूरा आत्मा पे जब प्रहार हुआ, और राम जी तो देश की दुनिया की आत्मा है, उन पे आपने प्रहार किया, फिर एक महिला की आत्मा पे आपने प्रहार किया, तो वो खरोच इतने बड़े बड़ी चोटें हो गई कि उसका रिएक्शन आना पड़ा। So far, and you've obviously been a political observer, what is it about Prime Minister Modi's leadership which is unique? So I've always admired one thing about Modi ji, and that was his वो कहते हैं ना, एक आग है उनके अंदर कुछ करने के लिए, काम करने के लिए 24 घंटे काम करते हैं। एंड यू नो, एज अ प्राइम मिनिस्टर उसके साथ भी अपने काम के साथ जस्टिस किया है, एंड एज अ कार्यकर्ता ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो एसी कमरे में बैठ के सिर्फ ही कुड हैव टेकन इट इजी, कैडर है, वो लड़ाई लड़ेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बट इवन जो निगम का चुनाव होता था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ती थी से लेकर लोकसभा तक, वो इक्वल इम्पोर्टेंस से कांग्रेस पार्टी को कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। लाइक आई सेड, इतना रूल्स और डिसिप्लिन, अगर कहीं पे, एंड ही हिमसेल्फ इज सो डिसिप्लिन्ड, ठीक है, एज अ ऑपोजिशन हमने हमेशा उनको क्रिटिसाइज किया, बट जो उनके अच्छे पॉइंट्स थे मैं हमेशा बोलती भी थी पार्टी में। फिर मुझे बोलता था अरे तुम तो भक्त हो, तुम तो ऑरेंज बैग किसी दिन ऑफिस ले जाओगे तो बोल दिया जाएगा तुम्हारी बीजेपी से बातचीत चलेगी। मुझे बहुत ट्रोल किया था लोगों ने हमारी न्याय यात्रा में भी। आई हैड एन ऑरेंज बैग, Really? बैग दैट आई कैरीड, बिकॉज भगवा रंग से भी इतनी नफरत है। जिस दिन मैं एक दिन ऑरेंज सूट पहन के कभी चली जाती थी ऑफिस, तो मुझे बोलते थे अरे क्या बात है, बहुत बीजेपी हो रही हो, तो मैं मजाक में उड़ा देती थी। बट येस, हिज every कार्यकर्ता, that the way Modi ji works, that gives a lot of energy and a lot of हिम्मत and बहुत सारा, जैसे यू लुक अप टू अ पर्सन, तो जब वो इतना काम करे तो आपका कार्यकर्ता भी करेगा। आपका सिर्फ आपका कार्यकर्ता काम करे और आप कुछ ना करें, मैं हमेशा ये सवाल, दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन राहुल जी एंड मोदी जी। जब हम उस यात्रा में भी थे तो राहुल जी अपने बाइक गाड़ी में चले, वेव करे, और फिर अपने ट्रेलर से बाहर नहीं निकलते थे। आप पूरा दिन 8-8, 10-10 घंटे वो ट्रेलर में रहते हो, जबकि आपको बाहर आके अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठना चाहिए था। जो यात्री अपना घर बार छोड़ के आपके ट्रैवल व्लॉगिंग के लिए आपके साथ चल रहे हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाना चाहिए। राहुल जी अपने ट्रेलर से बाहर नहीं निकलते थे। हाँ, जो मैं वो बता रही हूँ जो मैंने छत्तीसगढ़ में देखा, एंड आपने फोटो सेशन के लिए 2 मिनट के लिए बुला लिया, सबको फोटो खींचिए गए। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, अपने कार्यकर्ताओं से 2 घंटे बैठना चाहिए था डेली, और पूछना चाहिए था आप कि क्या चल रहा है, क्या तकलीफें हैं, आप न्याय कैसे करोगे। ही डजंट मीट, यू कांट मीट हिम। आई हैव बीन आस्किंग फॉर टाइम फॉर प्रियंका जी एंड राहुल जी फॉर 3 years। इन फैक्ट आई स्टिल रिमेंबर एट द यात्रा आई टोल्ड वन ऑफ हिज ऑफिस पीपल कि सर 3 साल हो गए टाइम मांगते हुए, अब तो दे दो टाइम। अच्छा, ये हालत थी, नहीं मिलता टाइम। आई शो यू माई मैसेजेस कि एक को बोलो कि टाइम चाहिए, मैं नहीं देखता, वो दूसरा देखता है, दूसरे को बोलो ये नहीं देखता है। हाँ। And here you have a leader who's very, very disciplined. I joined the party, and joining के 1 घंटे के अंदर I met the national president. I am now just a BJP कार्यकर्ता, and I've come from a party and come from a background which has always been against them. और अगर वो मुझे इतना वेलकम कर रहे हैं, तो सोचो जो आपका कार्यकर्ता होगा भारतीय जनता पार्टी का, उसके साथ कितना स्नेह होगा।
जब बाहर वाले के साथ ऐसा तो घर वालों के तो क्या मिलेगा। और हमारी पुरानी पार्टी में कांग्रेस में जब घर वालों के साथ ये हाल था तो सोचो कि बाहर वालों के साथ क्या करते। आई थिंक इसके बाद अब आपने मेरी बोलती बंद कर दी है. आई थिंक दिस ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन ऑफ दिस पॉडकास्ट बिकॉज दिस गिव्स आई गेस गुड हाउ डू आई से पंच लाइन टू द टू यूनिवर्सेस जो आपने अलग अलग बताई. फाइनली हाउ डज योर नेक्स्ट वीक लुक लाइक? यू आर वेरी बिजी. आई नो मेरे को बड़ी मुश्किल से ये टाइम मिला है. I am enjoying every minute of being a part of a party which is working towards building the nation and taking it to even higher levels, to a higher level that they've already taken higher. And you know, it's so nice to be heard. It's so nice to be a part of what is going to be happening next and contributing. And I'm looking forward to working here. And I was always told, अरे तुम बीजेपी में जा रही हो, तुम्हें कुछ कोई नहीं पूछेगा, ये नहीं है, ये तो कांग्रेस ही है. लेकिन 22 साल में जितना मेरी पार्टी ने हमारे ओपिनियंस को नहीं पूछा उतना 3 दिन में यहाँ पूछा गया. एंड I'm looking forward to working over here because there is a culture of working hard. Everybody is at the office early in the morning. We're working hard. When you called me in the morning, I was in the office. And after that, I was at the office. So, मतलब वो जो zeal है to work, I'm looking forward to that because that's what I do 24/7, just work. I've never done anything else other than politics since the age of 17. I've never worked anywhere. I've never done anything other than 24/7 politics. So I'm glad that I'm finally at a place where they are going to be working towards building a nation which has been taken back years in the 10 years of the UPA government. Okay. On that note, thank you so much for joining Thank you us for having me here. and wishing you all the energy to do everything that's lined Thank up you. for you. Thank you.